Good morning. So today we will start some questions on the six functions which we have studied in the previous lecture. That was sine inverse x, cos inverse x, tan inverse x, secant inverse, cosecant inverse and cot inverse. As we have discussed the domain and range of all these functions, so we are going to start some questions on them. So first question is, find the value of tan of cos inverse half plus tan inverse minus 1 by root 3. So I think we all of us know value of cos inverse half. कौन सा एंगल cos का वैल्यू हाफ देता है, कौन सा देता है 60 और 30, 60 डिग्री. तो दिस इज बेसिकली रिटन एज 60 डिग्री. tan इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 3, tan का कौन सा एंगल नेगेटिव में 1 बाई रूट 3 देगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल tan नेगेटिव के लिए कौन सा क्वाड्रेंट यूज करता है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, बिकॉज साइन इनवर्स, tan इनवर्स, cosecant इनवर्स दे यूज फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट. So tan inverse minus 1 by root 3 will be directly we can say minus 30 डिग्री, because 1 by root 3 कहाँ होता है 30 डिग्री पे. तो minus 1 by root 3 कहाँ होगा minus 30 डिग्री पे. 60 minus 30 is 30. So tan of 30 is equals to tan of 30 degree is equals to 1 by root 3. So this is the answer. Again cos inverse half means cos पे कौन सा एंगल हाफ देगा 60 डिग्री. tan का कौन सा एंगल माइनस 1 बाई रूट 3 देगा माइनस 30 डिग्री. 60 माइनस 30 इज 30, tan ऑफ 30 इज 1 बाई रूट 3. सिंपल. ओके, नाउ कम द क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज. कह रहा है डोमेन और रेंज बताओ. तो फर्स्ट फंक्शन लिखा हुआ साइन इनवर्स. साइन इनवर्स की डोमेन क्या थी, -1 to 1. ओके, साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2. ओके, लेट अस सी. सो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मॉड एक्स. अगर मॉड एक्स लिखा हुआ है तो डोमेन के लिए मॉड एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1. ओके, -1 से बड़ा तो पक्का ही होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. -1 से बड़ा तो होगा. क्यों, कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है. मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सॉल्व ओनली दिस इनइक्वालिटी, and mod x is less than equal to 1 will imply x less than equal to 1 and greater than equals to -1. So this is its domain. And what about range? This is modulus. Modulus will always be positive. Okay, also it will be less than equal to 1 for sine inverse. It will be less than equal to 1 for sine inverse, but it is mod, then it will be greater than equal to 0. So this input is going to be 0 to 1. This input is going to be 0 to 1. If it is going from 0 to 1, then sine inverse 0 is 0 and sine inverse 1 is π/2. This is its range. This is its range. And this was its domain. Is that clear or not? डोमेन के लिए क्या चेक किया कि इनपुट जो है -1 से 1 आना चाहिए. ठीक है, मॉडुलस -1 से बड़ा पक्का ही होगा, तो इसको छोड़ दिया. तो मॉडुलस की वैल्यू 1 से छोटी कब होगी, जब x की वैल्यू -1 से 1 होगी. तो दिस इज इट्स डोमेन. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर रेंज. इफ दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, देन इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑल्सो, because it is a modulus function. So this input is going to be 0 to 1, and for sine inverse 0, 0, sine inverse 1, π/2, including all the values in between, then range is 0 to π/2. 0 to π/2. Is that clear or not? Okay, now let us move to next question. Note it down. If you have any doubt, direct message me on my WhatsApp number, okay, which I have provided or will provide in this lecture. Now function is sine inverse greatest integer x. Okay, so first of all domain, B part. Domain, this greatest integer function less than equals to 1 and should be greater than equals to -1. All these functions we have discussed in the functions chapter. मॉडुलस की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 से छोटी या 1 के इक्वल. 1 के इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पता कब तक आती है, जब तक 2 ना हो जाए. जैसे 2 होगा तो इट विल जंप टू 2,
बट 1.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1. ओके, एंड फॉर -1 से बड़ा इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 ओनली, बिकॉज -1 से जैसे ही आगे गया इट विल जंप टू -2. ओके, सो दिस इज इट्स डोमेन. This is its domain. Now let's talk about range. For range, input जो है वो क्या क्या मिलने वाला है. Input ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है. ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू या तो क्या होगी, -1 होगी, या ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 होगी, या ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 होगी. यही 3 वैल्यूज हो सकती हैं. क्या इसके अलावा कोई और वैल्यू लेगा इनमें? ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं लेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर इज integer function, it will give only integral values. Okay, sin inverse -1 is -pi/2, sin inverse 0 is 0, sin inverse 1 is pi/2. So this is its range. This is its range. So range contains only 3 elements: -pi/2, 0 and pi/2. Okay, is that clear? Now let us move to C part. मेक श्योर क्वेश्चन क्लियर करके ही आगे चलना. कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, कोई नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट आगे डरना नहीं है. फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1. आप एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो. मेरे को तो ये पता है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जो है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है. तो क्या इसके अंदर तो अपने आप ही आ गया, ये हमेशा ही होगा. कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, क्या ये तो हमेशा इक्वालिटी इनइक्वालिटी ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है. ओके, अगर ये ट्रू है तो मतलब इसकी डोमेन ऑल रियल, डोमेन विल बी ऑल रियल. नाउ लेट अस मूव टू रेंज. फॉर रेंज, what will our input will be? Our input will be 0 to 1. Okay, and cos inverse is decreasing function. If cos inverse is decreasing function, then if I have to find the answer of this, then I will start as cos inverse 1. Cos inverse 1 is, we will write it later on, 2 cos inverse 0, because it is decreasing function. In decreasing function we have to change the inequality sign. That's why cos inverse 1 to cos inverse 0. Cos inverse 1 is 0 and cos inverse 0 is pi/2. So this is its range. This is its range. Again fractional part x है, कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से 1, क्योंकि cos इनवर्स है. बट हाँ, हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू 0 से 1 ही होती है हमेशा. अगर 0 से 1 होती है तो कुछ भी पुट कर लो आप, ये तो हमेशा फॉलोड है. हमेशा फॉलोड है तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल. ओके, फॉर रेंज ये इनपुट क्या मिलने वाला है, हमें 0 से 1 मिलने वाला है. 0 से 1 मिलेगा, बट कॉस इनवर्स है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो कॉस इनवर्स 1 2 लेकर कॉस इनवर्स 0. कॉस इनवर्स 1 कितने पे होता है, 0 पे. कॉस इनवर्स 0 pi/2 पे. सो 0 to pi/2 इज द रेंज. ओके, नाउ लेट्स मूव टू डी पार्ट. Let us move towards D part. Cos inverse e की power x. Okay. So first of all, e की power x should be less than equal to 1, greater than equals to -1 for its domain. E की power x is a positive function. Is a positive function always, and it never takes 0. Okay. So we have to solve this or not? No. There is no need of solving this, because we know e की power x is positive, that is it is greater than -1. It is sure. But we have to solve this. E की power x is less than equal to 1. Yes. E की power x is less than equal to 1. Can I write it as e की power 0? Base are same, then I can say x should be less than equal to 0. जब भी x 0 से छोटा होगा या 0 होगा तब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड है. बिल्कुल है. ग्राफ से भी देख सकते हो, ग्राफ से e की पावर x का ग्राफ क्या कुछ ऐसा होता है. हमें वैल्यू e की पावर x कहाँ से छोटी चाहिए, 1 से छोटी, और ये 1 ही होता है. ये 1 किस पे होता है, 0 पे होता है. तो इसे छोटा या यही, तो क्या 0 से पहले या 0, तो वही लिखा हुआ है 0 या 0 से पहले. तो दिस इज इट्स डोमेन. दिस इज इट्स डोमेन. बात करें रेंज की. रेंज के लिए e की पावर x
क्या क्या लेके आने वाला है, e की पावर x क्या 0 लाएगा, नहीं लाएगा क्योंकि 0 टच कभी नहीं करता। कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो ये इनपुट मिलने वाला है e की पावर x को ये मिलने वाला है। तो कॉस इनवर्स 0 से 1 लिखूंगा या कॉस इनवर्स 1 से कॉस इनवर्स 0 लिखेंगे, बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। सो कॉस इनवर्स 1 इज अगेन 0 एंड कॉस इनवर्स 0 इज अगेन π/2। सो अगेन रेंज इज 0 to π/2, अगेन रेंज इज 0 to π/2। ओके, इज दैट क्लियर और नॉट। e की पावर x पॉजिटिव फंक्शन होता है, हाँ, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। हाँ, बट हमें इनपुट में ये लेस देन इक्वल टू 1 चाहिए, तभी कॉस इनवर्स डिफाइन होगा। तो e की पावर x की वैल्यू 1 से छोटी, 1 से छोटी कब होती है, जब फंक्शन इधर है। फंक्शन इधर कहाँ पे है, जब x की वैल्यू 0 से या 0 से छोटी है। ठीक है, दैट इज आवर डोमेन। फॉर रेंज e की पावर x क्या क्या लेके आने वाला है, इस वैल्यू के लिए, इस वैल्यू के लिए कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, उससे कम कहाँ तक, 0 को टेंड कर रहा होगा। तो 0 से 1 इनपुट मिलने वाला है कॉस इनवर्स को, इससे कम इनपुट ये मिल रहा है अगर, तो कॉस इनवर्स 0 से 1 लिखूंगा या कॉस इनवर्स 1 से कॉस इनवर्स 0 लिखूंगा। इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, सो आई विल राइट इट एज कॉस इनवर्स 1 to कॉस इनवर्स 0 एंड कॉस इनवर्स 1 इज 0 एंड कॉस इनवर्स 0 इज π/2। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट e पार्ट। What is e part? Signum of cot inverse x. Signum of cot inverse x. So first of all, cot inverse x should be defined. And for cot inverse x, what is the domain? Domain is all real. याद करो ग्राफ कुछ ऐसा था, ये वाली वैल्यू पाई पे टेंड कर रही थी, तो all x के लिए डिफाइन था, तो cot inverse x की डोमेन all real, then signum will also be defined. Okay, but let us talk about the range. This is its domain. Now for range, cot inverse x की रेंज, cot inverse x की रेंज क्या 0 से पाई होती है? cot inverse x की रेंज क्या 0 से पाई होती है? होती है। तो सिग्नम इन वैल्यूज के लिए, सारी वैल्यूज के लिए क्या हमें आउटपुट देगा? 0 से पाई सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए सिग्नम क्या देता है? ओनली वैल्यू 1, ओनली वैल्यू 1। सो दिस इज इट्स रेंज, ओनली एलिमेंट 1। इज दैट क्लियर और नॉट? भाई कॉट इनवर्स एक्स डिफाइन कहाँ होता है? ऑल रियल के लिए डिफाइन कर दिया। अब कॉट इनवर्स एक्स की रेंज क्या आएगी? 0 से पाई आएगी, तो सिग्नम उसके लिए क्या देगा? ओनली 1 देगा। सो दिस इज इट्स रेंज, जो बाहर निकल के आने वाली वैल्यू है वो ओनली 1 है। ओके, let us move towards f part. Cot inverse of signum x, just reverse of this. There was signum of cot inverse, now cot inverse signum x. Cot inverse signum x, do we what is its domain first? For domain, सिग्नम डिफाइन होना चाहिए, सिग्नम सबके लिए डिफाइन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए कॉट इनवर्स डिफाइन भी होना चाहिए। सिग्नम जो है क्या क्या लेके आता है? -1, 0 और +1। क्या कॉट इनवर्स -1 डिफाइन है? बिल्कुल है। कॉट इनवर्स 0 डिफाइन है, डिफाइन है। कॉट इनवर्स +1 डिफाइन है, डिफाइन है। मतलब x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो आप, मेरा फंक्शन डिफाइन है, सो x मस्ट बिलोंग टू ऑल रियल। ओके, बट हाँ, हमें पता है सिग्नम x क्या कहलाएगा? -1, 0 और +1। सो आवर रेंज विल बी ओनली 3 एलिमेंट्स, that is cot inverse -1, cot inverse 0 and cot inverse +1. okay, cot inverse -1 is -π/4 or pi plus π/4 or pi minus π/4, pi minus π/4. Cot inverse 0 is, tell me something fast, pi/2, and cot inverse 1 is pi/4. so can I say pi/4, pi/2 and 3π/4? These three elements are in the range of this function. Again, signum is defined for all, so domain is all real, because cot inverse पे कोई दिक्कत नहीं करेगा। Again, signum x क्या लेने वाला है? -1, 0 और +1। So इन सब के corresponding cot inverse क्या देगा? cot inverse -1 will give 3π/4, cot inverse 0 will give pi/2, cot inverse +1 will give pi/4. So this is its range, only 3 elements. Okay, is that clear? Now let us move towards question number 3. Read the question number 3. What is it? It is saying
Find the values of p for which tan inverse something is greater than equal to 0. बट tan इनवर्स की वैल्यू 0 से बड़ी कहाँ होती है, कहाँ होती है? अगर मैं ग्राफ की बात करूँ tan इनवर्स से ग्राफ की, तो tan इनवर्स का ग्राफ was something like this. Was it something like this? Yes. कह रहा 0 से बड़ी, 0 से बड़ी मतलब यहाँ, तो यहाँ जाने के लिए इधर जाना पड़ेगा तभी ग्राफ ऊपर जाएगा. ओके मतलब जो इनपुट मिल रहा है tan इनवर्स को, जो इनपुट मिल रहा है tan इनवर्स को वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए. ओके और वी कैन डू दिस क्वेश्चन एज दिस ऑल्सो. आई कैन राइट 0 एज tan inverse 0. I can write it as tan inverse 0. Both are tan inverse. We can cancel it out, but reason is there. It is increasing function. That's why I am directly saying x square minus 2x plus b is greater than 0. अगर वहाँ पे cot inverse होता तो inequality का साइन चेंज हो जाता. Okay, so these are two methods of doing this question. This is greater than 0 for all. For तो ये हमेशा पॉजिटिव कब होगा, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव रहेगा. डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी नेगेटिव. फॉर कॉमन 1 माइनस पी शुड बी नेगेटिव. फॉर कैंसिल आउट 1 माइनस पी लेस देन 0. तो आई कैन से पी की वैल्यू 1 से बड़ी हो, पी की वैल्यू 1 से बड़ी कुछ भी ले लो तो ये वाली क्वांटिटी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, बिकॉज उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एज लीडिंग कोएफिशिएंट इज 1, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव. Is that clear? So this is how to solve the questions. Okay. Now let us move to the question number 4. Now let us move to question number 4. Range of sin inverse x plus tan inverse x plus secant inverse x. So whenever we have to find the range, what we have to find first? We have to find its domain. Because पता तो हो फंक्शन डिफाइन कहाँ पे है. जब यही नहीं पता होगा फंक्शन डिफाइन कहाँ पे है तो क्या फ़ायदा. साइन इनवर्स एक्स डिफाइन होने के लिए एक्स को -1 से 1 होना पड़ेगा. टेन इनवर्स एक्स को डिफाइन होने के लिए एक्स कैन बिलोंग्स टू ऑल रियल. एंड फॉर सेकंड इनवर्स डिफाइन होने के लिए -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फानाइट. बट हमें तो फंक्शन पूरा डिफाइन चाहिए, तो पूरा डिफाइन चाहिए तो सबका इंटरसेक्शन, सबका इंटरसेक्शन. ध्यान से देखो ये कह रहा है ऑल रियल, ठीक है, -1 टू 1 कह रहा है, और इसमें कह रहा है -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फानाइट. So, can you say that x belongs to only -1 and 1? Only -1 and 1 is the common part of this. Okay, so this is its domain. If -1 and 1 is the domain, then what will be its range? At -1, it will be going to give us sin inverse -1, that is minus pi by 2. Okay, tan inverse -1, tan inverse -1 is minus pi by 4, and secant inverse -1, secant inverse -1 is 0, then it will be minus 3 pi by 4. This is one of the element of our range. Is that clear or not? Okay. Now for 1, sin inverse 1 is pi by 2, tan inverse 1 is pi by 4, and secant inverse 1 is 0, sorry, -1 in this part, -1, secant inverse -1 is pi. I have written it wrong. Secant inverse -1 is pi. So pi minus pi by 2 is pi by 2, pi by 2 minus pi by 4 is pi by 4. So this is the element. For 1, sin inverse 1 is pi by 2, tan inverse 1 is pi by 4, secant inverse 1 is 0. So it will come out to be as 3 pi by 4. So our range is pi by 4 and 3 pi by 4. Only 2 elements will be there in the range. Okay, repeating again, first of all we have to find the domain if we have to find the range. So for the domain, sin inverse x की domain -1 से 1 होगी, tan inverse x की domain all real होगी, secant inverse x की domain -∞ से -1 union 1 to infinite होगी. तो हमें तीनों चाहिए, तो तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का कॉमन पार्ट, ओनली 2 एलिमेंट आ रहे हैं -1 और 1. तो -1 पे वैल्यू sin inverse -1 minus pi by 2 देगा, tan inverse -1 minus pi by 4 देगा, secant inverse -1 pi देगा. Okay, now let's to move to +1. Sin inverse 1 is pi by 2, tan inverse 1 is pi by 4, secant inverse 1 is 0. This is pi by 4 and this is 3 pi by 4. So there are 2 elements only, pi by 4 and 3 pi by 4 in our range. Is that clear? Okay.
Now let us move towards the last question, that is fifth question. See it carefully. This is also a good question. So these all questions are very important because these type of questions are asked generally in JEE Mains and Advanced. Find the value of a plus 1 by b plus 1 by c if cos inverse a plus cos inverse b plus cos inverse c equals to 3 pi. इक्वल्स टू 3 पाई. कॉस इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई. इसकी भी कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई. इसकी भी कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई. तीनों को अगर ऐड भी कर दूंगा तो क्या इसकी मैक्सिमम रेंज 3 पाई जाएगी और मिनिमम वैल्यू 0 जाएगी जब तीनों 0 होंगे. ठीक है, मतलब ये तो इसकी रेंज है किसकी? इस पूरे फंक्शन की. बट वो कह रहा है इक्वल टू 3 पाई, तो इक्वल टू 3 पाई ही चाहिए. मतलब इसकी वैल्यू क्या रही होगी? पाई. इसकी वैल्यू क्या रही होगी? पाई. इसकी वैल्यू क्या रही होगी? पाई. इनकी वैल्यू पाई कब होगी? जब कॉस इनवर्स को इनपुट कौन मिलेगा? -1. सो बी ऑल्सो -1, सी ऑल्सो -1. तभी तो साइन कॉस इनवर्स क्या देंगे? पाई देंगे. Okay, so a will be -1, 1 by b will be -1, 1 by c will be -1. So answer will be -3. Answer will be -3. Is that clear? So these were some questions on the first lecture of ITF. Okay, so in the next lectures we will study some properties of inverse trigonometric functions. Till then, have a nice day and do it carefully and learn the graphs of sin inverse x, cos inverse, tan inverse, cosecant, secant and cot inverse. Find the range and find the domain. Okay, so you can do some questions from my question bank I will provide you. Just give me a call or just give me a WhatsApp. Okay, thank you.